रुचि मैम शुरू करें? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम गुड and इवनिंग। good evening to everyone. So today Gauri ma'am has brought a very interesting talk on the nutrition for defying age and cellular aging. And she is a regular speaker as AHE alumni and is also working in the food and nutrition industry. And थैंक last यू month मैम। also we had her wonderful session last month and it was appreciated by the audiences very much. थैंक यू So मैम। I now share the platform to Gauri ma'am. Yeah, just थैंक 1 second, Gauri. यस मैम। Everyone present here, today's topic is very, very interesting and it is very applicable to our life. Okay, so try and share the link as to as many as people you can. This session is free and anyone can join here, right? This is the knowledge-based sessions only. So आप किसी को भी बुला सकते हो जिनको आपको लगता है कि you want get to get them benefited. ठीक है? चलो. Yes, Gauri, start. Yes, ma'am. Thank you, Amita ma'am. First of all, thanks a lot for providing me this platform. As Ruchi ma'am is mentioned, I am a IHE student, and I'm really thankful to IHE organization as well as Amita ma'am and my colleagues for helping me to gain the knowledge in this field and giving me the confidence कि आज मैं आपके सामने present. अरे म्यूट हो गया Am I गौरव. audible? हाँ हाँ यस Am I यस audible now? यस ऑडिबल. So, जैसे ma'am, Amita ma'am, thanks a lot. I'm very thankful to you as well as IHG organization and to my friends from IHG. To ma'am, especially thanks to you to help me to gain the knowledge in this field and build the confidence so that today I can present and talk on some topics related to wellness. So thanks a lot. So today's topic is longevity on your plate. I will share my slides with you. Yes. Am I audible as well? And please confirm Yes, the ma'am. slides are visible. Yes, yes. The slides are Yes. visible and you are perfectly audible, ma'am. Yes. Thank you. Thanks a lot. So as you can see, a plate full of veggies with color and the colorful part. So basically, we are focusing on the colorful part that will is more appealing. When you're going for food at the restaurants, you are not going only for the taste of the food. You are going because जो प्रेजेंटेशन रहता है फूड सर्व करने का, दैट इज मोर अपीलिंग. जब हम खाना खाते हैं तो पहले हम खाना फील करते हैं विथ हेल्प ऑफ आवर आईज. एक बार वो मन भर गया कि हाँ प्लेट अच्छा दिख रहा है, तो एक दो बाइट में भी हमारा पेट भर जाता है. हैव यू नोटिस दैट? इफ यस, प्लीज शो थम्स अप. कभी नोटिस किया है कि प्लेट कैसे होता है, उस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि खाने में अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा. पहले हम लोग टेस्ट डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर आईज, फिर वो चख के देखते हैं. यस. सो इट इज बेसिकली ईट बेटर टुडे फॉर टुमारो. यस. Every meal, as you all know, every meal is an investment for us. Today, we are not going to talk about the diseases like weight loss, weight management, or the diabetes or the high blood pressure. We are talking about the healthy life. How many, if there are two people, for example, एक जो है who is 90 years old, but who is cannot walk, taking a help of wheelchair, and the other person
who is 90, 95 years, but is independent, active, energetic. So which one will you choose? First one or second one? Which life will you prefer? First one or second one? Yes, mostly we will go for second one, right? Everyone is thinking of कि नहीं बाबा मुझे तो जो भी मैं जिंदगी जी है मैं अच्छी खासी जीना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ. एज अ ह्यूमन एज अ ह्यूमन बीइंग और एनी लिविंग पर्सन, डिपेंडेंसी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क कि एक जो खुद से करना बचपन से सिखाया जाता है कि हाथ खुद से हाथ पे अपने खाने होने के बाद हाथ धो लो, गो टू वॉशरूम. ये जो काम होता है वो डिपेंडेंट होने के बाद करना बहुत तकलीफ होती है, राइट? तो ना वी आर गोइंग टू टॉक कि हम लोग, अयो आप सब लोग एग्री करते हो कि फूड इज गोइंग टू हेल्प अस? Yes. Yes, definitely food is going to help us. So our goal is adding years to the life, not talking about the how many years, because अभी जो मेडिकल फील्ड में जो अचीवमेंट्स हुए उसके कारण एवरी अभी जो लाइफ स्पैन भी है एज यू कैन सी 90 95 तक एवरी इज देयर, लेकिन हमें वो हेल्दी लाइफ स्पैन चाहिए, करेक्ट? सो वी आर आवर गोल इज एडिंग लाइफ टू दोज इयर्स. इज इट? सो डू यू ऑल Yes. एग्री? Yes. सो मुझे ना सबको एक क्वेश्चन पूछना है. यू कैन शो मी थम्स अप. यहाँ पे 3 पिक्चर्स दिखाई दे रहे. वन इज अ कलरफुल प्लेट. तो आप में से आज कितने लोगों ने ये पांचों कलर्स यू हैड इन योर लंच और इन एनी मील फॉर टुडे? यस. आप में से कितने लोगों ने आज 3 लीटर पानी किया है, ले लिया है, कंज्यूम किया हुआ है? यस, आर यू ऑल देयर? आप में से कितने लोगों ने आज 30 मिनट्स का एक्सरसाइज किया हुआ है? यस. सो अभी सबने नोटिस किया होगा कि 3 क्वेश्चंस के लिए कितने थम्स अप आए हैं. सो कितने लोग एग्री हुए इस बात पे. सो वी नो कि हमें कौन से टॉपिक पे खुद को इम्प्रूव करना है, करेक्ट? दिस 3 क्वेश्चंस आर नॉट फॉर जजिंग, इट्स टू इम्प्रूव आवर सेल्फ. ये जो तीन चीजें हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी लाइफ. और जरूरी नहीं है कि हमें एक साथ तीनों शुरू करने हैं. वी आर गोइंग टू डू इट स्टेप बाय स्टेप, बट द कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट इन द हेल्दी लाइफ स्पैन. आज मैंने बस तो आज कलर खाए, हो गया. कल मैं बस पानी पीऊंगा, नहीं. कल मैं हेल्दी प्लेट विथ वाटर इनटेक हमें अचीव करना है, 2 to 3 liters पर डे. मैं अभी तक एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ. इट्स ओके. वी कैन स्टार्ट विथ 10 minutes वॉक आफ्टर एवरी मील, बट हमें 30 to 45 minutes का एक्सरसाइज मूवमेंट होनी चाहिए हमारी बॉडी की. बेसिकली इट्स नॉट, एक्सरसाइज इज नॉट ओनली अबाउट द वेट लॉस और द वेट मैनेजमेंट. और जरूरी नहीं है कि आपको कोई डिसीज है उसके बाद ही आप शुरू करो. इट्स अ डेली एक्टिविटी दैट वन शुड डू फॉर द हेल्दी लाइफ स्पैन, फॉर द हेल्दी फ्यूचर और द अच्छा, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि 2 कार्स रहती है. अगर एक कार को आप पूरा मेंटेन करोगे और दूसरी कार का आप मेंटेनेंस ही नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं, कभी किया कभी नहीं किया, विच वन यू प्रेफर, फर्स्ट और सेकंड? यू कैन मैसेज इन द चैट बॉक्स. 2 कार्स है, एक कार को आपने बिल्कुल मेंटेन नहीं किया हुआ है, फर्स्ट कार को, और जो सेकंड कार है वो एक ही बंदा चलाता है, उसका मेंटेनेंस भी एवरी ईयर वो मैप करता है. So which car will you prefer? Yes, second, right? Why? Because there is a value or the life in that years for that car.
in those particular years. Correct? Same thing with a human being. Human being is also nothing but machine with all the activities that going inside all by ourselves. Correct? Are you all agree? हमारी बॉडी हमेशा खुद को हील करने में उसका फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है. जैसे कि बाहर की ठंड बढ़ रही है, तो व्हाट डू वी डू? हमें बॉडी सिग्नल्स देती है कि मुझे ठंड लग रही है, तो गर्म कपड़े पहनो, या हमें बॉडी खुद को अडॉप्ट करने की कोशिश हमेशा करती रहती है. तो हमें बॉडी को मेंटेन करना भी जरूरी है. तो दीज आर द 3 थिंग्स वी शुड टेक केयर ऑफ. यस, इज एनीवन वांट्स टू से समथिंग? ವಾರ ವಾರ ಇದೇ Will you please ಪ್ರಚನೆ. mute yourself? Yes, thank you. Thanks a lot. So today we are going to talk, we are going to understand, we are going to discuss कि हमारी बॉडी एज कैसे बढ़ता है, how our food affects our cells, how we can slow down our aging. किसी को 40-50 साल में wrinkles आना, बूढ़ा दिखना अच्छा नहीं लगता है. Correct? So we are going to discuss those things. We are going to discuss how we can build our plate to achieve this healthy, sustainable life. We can think about our daily habits, what we can change, how we can take a step towards it. And as I said, a small steps, but with the consistency, that is daily. इसमें अभी क्वेश्चन आता है कि मैं एक दिन नहीं करूंगी तो चलेगा क्या? It's okay. One day is okay. 2 days also okay. But it should not be the consistency of not doing it. Right? The consistency of should be following the healthy habits. Are you all agree? यहाँ पे जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, we are talking about the lifespan and we are adding value to that life. Correct? A person who is enjoying his birthday, 90th birthday, अगर वो व्हील चेयर पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करे, तो वो ज्यादा खुश रहेगा, या अगर वो विदाउट व्हील चेयर कि वो घूम फिर रहा है, he can do all his work on his own or on her own, वो उसको डिपेंडेंसी नहीं है किसी पे. Which picture will you choose, first or second? You can message in chat box. Without wheelchair? Yes, definitely, क्योंकि सबको यही लगता है. मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. एट द एज कुछ सालों पहले मुझे चिकनगुनिया हुआ था. तो इन चिकनगुनिया जॉइंट्स जैसे दर्द करते, यू कैन नॉट वॉक. दैट मेड मी रियलाइज कि क्या होता है एक्टिव होना, इंडिपेंडेंट होना, इवन एट द एज ऑफ बिटवीन 30 to 40. अगर 60-70 में किसी को करना पड़ता है कि मैं किसी पे भी डिपेंडेंट हूँ, वो अच्छा नहीं लगेगा किसी को. राइट? So we are going to focus on health span, not on the lifespan. Yes? जैसे we all are aware कि हमारे बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स रहते हैं. करेक्ट? अभी एजिंग होती क्यों है? What are the reasons of aging? Can anyone guess? You can write it in chat box, so everyone can answer. Any guess? Aging होती क्यों है? Yes, inflammation. Yes, pollution, poor diet. That's correct. Perfect. Sleep, correct. Lack of nutrition. That's also right. Sedentary work style. That's correct. हम
आजकल हमारी एक्टिविटी लेवल बहुत कम हुई है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ एजिंग. और स्ट्रेस भी बहुत बढ़ गया है. उसके कई यस मसल लॉस भी होता है. दैट्स करेक्ट. सो एज वी ऑल नो कि एजिंग होती है बिकॉज ऑफ द पुअर डाइट, पुअर लाइफस्टाइल वी कैन से. हम पानी बहुत कम पीते हैं, एक जगह पे बैठ के बहुत सारा काम होता है, नो एक्टिविटी लेवल. So that will affect us. So what are we going to do? So we know all the factors, correct? कि एजिंग किसके कारण होती है. तो what we have to focus, healthy lifestyle, sleep proper होना चाहिए, stress management आना चाहिए हमें. जैसे कि हमारे मेडिटेशन क्लासेस भी रहते हैं, तो those that will help us for the stress management, right? एंड एक्टिविटी लेवल, जैसे कि मैंने वो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 30 मिनट्स का नहीं हुआ, 30-45 मिनट्स का एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है. वी विल स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स, 10 मिनट्स आफ्टर एवरी मील, एटलीस्ट आफ्टर 3 मेन मील्स. वो शुरू कर सकते हैं. धीरे धीरे बॉडी को भी आदत हो जाएगी, मसल्स विल गेट मसल्स विल गेट एक्टिव, और यू कैन इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल आफ्टर दैट. अभी ये एजिंग का सेल के लेवल पे, जैसे कि हमारे बॉडी के जो सेल्स रहते हैं वो खुद को रिपेयर करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं. क्योंकि हमें बुखार हुआ, सेल्स विल फाइट अगेंस्ट इट. यस, क्योंकि टू कीप अस हेल्दी हम द मेडिसिन लेते हैं, कुछ लेते हैं, उसके कारण थोड़ा सा तो बॉडी में इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है. लेकिन इन्फ्लामेशन इज नथिंग बट द हीलिंग प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी. लेकिन ये इन्फ्लामेशन कितने दिनों तक अच्छा है, अगर वो ज्यादा देर देर ज्यादा टाइम स्पैन के लिए रहता है, देन विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. दैट इज द सिग्नल. बॉडी गिव्स अ सिग्नल कि दिस इज नॉट अ गुड इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड कैरी ऑन. यस. सो हमेशा हम लोग जब हेल्दी डाइट के बारे में सोचते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पहले इन्फ्लामेशन कम करेंगे बॉडी में जो है वो, क्योंकि पानी भी कम पीते हैं तो भी इन्फ्लामेशन हो जाता है. So that's why the water intake is very important. Correct? और इन्फ्लेमेशन बढ़ने से होता क्या है? There is a risk of diabetes, there is a risk of heart diseases, weight बढ़ जाता है. All this and that affects again on the age. आपने कभी देखा होगा कि a person who is 80, जैसे कि अभी स्मार्ट स्केल पे दिखता है कि आपका बॉडी के आपका एक्चुअल एज ये है, और अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स दैट यू हैव अभी जो स्केल पे चेक किया हुआ है उसके हिसाब से बॉडी एज कितना दिखा रहा है. करेक्ट? कभी नोटिस किया है आपने, ये स्मार्ट स्केल पे दिखाई देता है. बीएमआई करते हो तो पैरामीटर्स में वो आता है कि बॉडी एज क्या है आपका. योर एज, करंट एज इज दिस मच एंड योर बॉडी शोज दिस इज द एज of your body. The another reason for this aging is the oxidative stress. Oxidative stress के कारण होता क्या है? Oxidative stress is basically हम जब खाना खाते हैं, जो मेटाबॉलिज्म हमारा होता है उसमें बॉडी कुछ रेडिकल्स डेवलप करती है. That radicals gives us oxidative stress. It damages cells, it damages cells and DNAs. So that's all nothing but the oxidative stress. लेकिन oxidative stress अभी हम सबको पता है, यूट्यूब पे बहुत आता है. How can we what are the things that we can take towards to reduce this oxidative stress? क्या होता है? You heard about antioxidants? Yes. 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 Or another reason for this aging is glycation. अब कभी भी पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आप शुगर कितना खाते हो. एक्सेस शुगर इज अ वर्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग एवरी टाइम. कुछ कहीं बाहर गए, कुछ खाने के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो वी आर एंडिंग अप विद द स्वीट्स. स्वीट्स के बिना खाना नहीं होता है. बट स्वीट्स अगर बाद में खाते हैं तो
वी आर हैविंग इट जस्ट फॉर द टेस्ट बड्स। तो वो शुगर इनटेक कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। और every meal we have, if we are adding sugar or add on sugar, it's not, I'm not talking about the sugars which are present naturally in the fruit, in the food, but the add on sugar, if it is excess in amount, yes, there is a certain amount which is allowed for every person per day, but if excess, क्या होता है, ये एक्सेस शुगर जो होता है वो प्रोटीन के साथ कंबाइन होके एक प्रोड्यूस करता है, इट्स विच इज कॉल्ड एजीईएस, एजेस। यस, एंड विच अफेक्ट्स टिश्यू कोलेजन। ये कोलेजन वर्ड तो हम सब लोगों ने सुना है, स्पेसिफिकली जब एड्स आते हैं स्किन स्किन प्रोडक्ट्स वाले, उसमें बहुत फोकस, उसमें बहुत बम्बार्ड किया जाता है, इस वर्ड पे ही फोकस किया जाता है कि कोलेजन रिपेयर करने के लिए ये, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या आपने, तो यू मस्ट बी अवेयर, अभी आपको क्लू मिल गया होगा कि ग्लाइकेशन से होता क्या है। इट अफेक्ट्स अवर स्किन, यस, इट अफेक्ट्स अवर ब्लड वेसल, इट अफेक्ट्स अवर जॉइंट, और लास्ट में है जो मसल लॉस। अगर हम लोग मूवमेंट नहीं होता है तो मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। सो मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट लाइक क्लाइंबिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, इट हेल्प्स अस। मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस इन मेटाबॉलिज्म, इट हेल्प्स अस टू स्टे इंडिपेंडेंट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर किसी पे भी डिपेंडेंट रहना पड़े किसी ह्यूमन बीइंग को, इट्स नॉट गुड। एज अ ह्यूमन बीइंग यू डोंट लाइक टू बी डिपेंडेंट। सो small steps, small activity per day will help us to live better and longer. Yes. So now we know कि एज के फैक्टर्स क्या क्या है, सो हमें किस पे काम करना है। यस, तो हम लोग वी विल गो बैक, जैसे मसल लॉस इंप्रूव करने के लिए, यस, मसल लॉस ओवर द पीरियड होता ही है, करेक्ट, लेकिन वी कैन इम्प्रूव। अगर आपने आपने सुना भी होगा कि जॉइंट पेन अगर आपको अवॉइड करना है तो स्ट्रेंथन योर मसल्स, क्वाड्रिसेप पे वर्क करो, आपके काफ मसल्स पे वर्क करो, तो आपका नी हेल्थ विल गेट लॉन्गर। आपको जरूरत नहीं है जल्दी, आपके नी पेन्स के प्रॉब्लम्स नहीं शुरू होंगे इफ योर क्वाड्रिसेप्स एंड काफ मसल्स आर हेल्दी। शुगर, सब हम लोग आजकल बहुत सुनते हैं कि शुगर कम करो, शुगर कम करो। यस, प्लीज अवॉइड एड ऑन शुगर्स। यस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हम कम कर सकते हैं, एंड इन्फ्लामेशन, ये दोनों पे हम लोग काम कैसे कर सकते हैं, विद द प्रॉपर स्लीप हाइजीन मेथड्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स, एंड हैविंग एंटीऑक्सीडेंट्स इन आवर फूड। यस, वी कैन वर्क ऑन इट। तो अभी तक जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि antioxidants or sugars. So every bite we are having, we are sending a message to our body. क्या सेंड करते हैं? If we are having a नॉन हेल्दी फूड, अगर कोई बंदा अगर हमेशा बेकरी प्रोडक्ट्स खा रहा है, फ्राइड फूड खा रहा है, अगर उसको इवनिंग में, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे का मैं आपको रूटीन बताऊं कि सुबह उठ के ही इज हैविंग टी विद बिस्कुट्स, देन इन लंच ही इज हैविंग पराठास विद एकदम ऑयली सब्जी, then evening he is having some packet foods with tea, and रात को नान with सब्जी। अगर ऐसा फूड वो बंदा डेली खाता है, what message he is giving to his body? Is he giving his body, is he giving a message to the body says heal? Is he? No. Would definitely he will end up with the some or the other lifestyle disorder diseases, correct? लेकिन अगर एक बंदा हेल्दी फूड खा रहा है, जैसे कि सुबह उठ के उसने पहले कुछ वार्म वाटर लिया, देन ही हैड ब्रेकफास्ट, आफ्टर टी, उसके बाद लंच में उसने कलरफुल प्लेट में उसने ग्रीन सब्जी, दाल, रोटी और सम सीड्स,
देन शाम में उसने कुछ सत्तू वाटर वगैरह ऐसे कुछ लिया, और रात में अगेन सूप विथ सलाड एंड सम प्रोटीन पार्ट। तो ये बंदा मैसेज से क्या सेंड करेगा बॉडी को कि हील करना है मुझे, राइट? आई वांट टू प्रोटेक्ट माय बॉडी, आई वांट टू बिल्ड माय बॉडी, आई वांट टू, जैसे हमने बताया कि नट्स एंड ऑयल सीड्स अगर किसी में होते हैं, दैट हेल्प्स अस फॉर द ब्रेन फंक्शंस एंड द न्यूरो, अपना नर्वस सिस्टम में, दैट हेल्प्स अस टू फॉर दैट, एंड ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाता है। ये सारा अच्छा खाना अगर हेल्दी फूड आप खा रहे हो तो एक स्किन पे ग्लो भी आता है। हैव यू एवर नोटिस्ड? आपने कभी सुबह आप अगर एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज से पहले एक बार फोटो निकालना और एक्सरसाइज के बाद वाला फोटो निकालना, यू कैन सी द डिफरेंस। आपने एक ग्रुप में एक फोटो शेयर किया हुआ था, बिफोर एक्सरसाइज एंड आफ्टर एक्सरसाइज, यू कैन सी द ग्लो आफ्टर ऑन दैट पर्सन्स फेस आफ्टर एक्सरसाइज। नोटिस किया आपने वो? यस, वो एक दिन में नहीं आता है। इट इज बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी अ पर्सन इज डूइंग एवरी डे इन हिज एडिंग इन हिज लाइफ। अभी यहाँ पे अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट? हम लोग नवरात्रि के नौ नौ कलर्स सेलिब्रेट करते हैं, राइट? एवरी कलर इज हैविंग सम और द अदर इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। जैसे कि रेड कलर सपोर्ट्स अवर हेल्थ। रेड कलर में होता क्या है? रेड कलर से हमें विटामिन ए मिलता है, सी मिलता है, के मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है। यस, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लिकोपीन और एंथोसाइन, दैट हेल्प्स अस फॉर द, it works as an anti-inflammatory. Yes. Then comes orange color. ऑरेंज कलर में हमें कैरेट होता है, पंपकिन है, स्वीट पोटैटो है, पपाया, एप्रिकॉट। एज वी ऑल नो, it helps us in our vision, skin and hair. It is rich in beta carotene. It's a good source of vitamin A and vitamin C. It helps us to fight against infection. येलो कलर से एक फ्रूट है जो हमें बहुत पसंद है, वी इंडियंस आर वेटिंग फॉर दैट मंथ कि वो खाना है। यस, इवन विद द थिंकिंग ऑफ दैट फ्रूट, इट हेल्प्स अस टू बूस्ट आवर मूड। यस, एनीवन कैन गेस दैट मैंगो फ्रूट? यस, दैट्स मैंगो। यस, सो येलो हेल्प्स अस, इट्स अ मूड लिफ्टर। It's again rich source of vitamin C and vitamin A as well as potassium. And it's a rich source of dietary fibers also. It's antioxidant rich. It helps us in our skin, hair and bone health. Green color. आजकल जो भी डाइट करता है पहले उठ के ग्रीन स्मूदी पीता है। ग्रीन स्मूदी चाहिए हमें। Why green? Because it is having antioxidants as well as phytochemicals, which helps for the healthy blood flow. It reduces risk of cardiovascular diseases. It's so it's a good source for vitamin K, potassium, and folate, magnesium also. Purple, purple or blue color. It's written only purple or blue color. Purple or blue color helps basically in anti-aging. It is having antioxidants called anthocyanin. It protects our brain and nervous system, and it supports metabolism as well as our, and all these colors some or the other way it's helping our gut also. तो आज के दिन आपने कितने कलर्स ऐड किए आपके मील में? यू कैन राइट 1 2 3 4 ऑल 5। दैट्स नाइस, ऑल 4 colors, good, wonderful.
See, so we can focus on all 4 colors, 5 colors, and there's a one color missing over here is a white color. White color helps us to fight against. It's basically having the property for antibacterial and antiviral, like garlic, onion, radish, which is rich in fiber, magnesium, and potassium. It helps control sugar. It helps to control bad cholesterol. कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो गार्लिक खा लो. जब गार्लिक क्रश करते हैं, that helps to create that enzyme. So our challenge to have all the colors, maybe fruits or vegetable in our in meal for a day. Yes? Agree? Yes. Yes. हमने अभी हमें लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि हमारी प्लेट कैसी होनी चाहिए. शुरू में हमारा डिस्कशन हुआ उसी के साथ कि प्लेट कैसी होती है. हम लोग बाहर जाते हैं, व्हाई वी आर गोइंग आउट. इट्स नॉट ओनली फॉर द टेस्ट ऑफ द फूड, इट्स अबाउट कि वो कैसे सर्व किया जाता है. यस, लेकिन फॉर द हेल्दी प्लेट इट्स देयर इज अ रूल कि आपका हाफ पोर्शन जो रहता है प्लेट का, विच इज शुड बी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. यस, आपका अभी अब जो आधे में है, विच इज अगेन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, half 1/4 for the protein, 1/4 for the whole grain. You all know protein is for the muscle building. We are talking about quality of the carb. We are talking only about the complex carbs or the whole grain. We are not going to count simple carbs like a bakery items, maida, bread, or naan. No, we have to focus on the whole grain part. Yes, and small amount of healthy fat. Why healthy fat? That helps for our brain and our nervous system. So these are the small choices which will help us for that healthier tomorrow. Sorry. So protein अगर हम सोचे तो प्रोटीन सोर्स क्या क्या होते हैं? If you are Get loud. if you are Get pardon? louder. Get loud like a बाहेर बघ. अगर आप प्रोटीन का सोर्स, if you are thinking, if you are a vegetarian, it's dal, paneer, tofu, curd, soya. These things we can consider. If you are non-vegetarian, yes, fish हो गया, eggs हो गया, chicken हो गया, not red meat. We are talking about the lean meat. So muscles we are focusing कि प्रोटीन कितना होना चाहिए. We are not talking about diet right now. We are talking about the healthy food which will help us in our health span. Right? तो इस ऐसे कंडीशन में एक बंदे ने कितना प्रोटीन लेना चाहिए. तो मेक श्योर कि एवरी मील शुड हैव सम प्रोटीन. If you are looking for some particular customized diet for yourself, you can ask your wellness coach or a doctor. But as a general general way, please add some amount of protein in every meal. It supports our metabolism. It gives us satiety. It increases our immunity. और मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है तो you are independent. You are active. Right? You should have moderate amount of protein over a day. Fats, here, again, ghee or oil in a moderate amount. If you're having you should have the calculation कि अगर 3 लोगों की फैमिली है तो 1 लीटर ऑयल फॉर अ मंथ इज इनफ. उतना अमाउंट ऑफ ऑयल ऑन एन एवरेज इफ यू डिवाइड इट इनटू 3 पर डे होना चाहिए आपका. यू शुड यूज. फिर बाद में ये जो वॉलनट्स है, ये जो नट्स एंड ऑयल सीड्स है, दैट वी कैन ऐड. That gives us omega 3
as well as vitamin E. Helps us fight against inflammation, oxidative stress. It is good for heart. It is good for brain health also. Yes, but oil and ghee should be in the moderate amount. Olive oil भी आप use कर सकते हो to sprinkle on your salad as a dressing. Gut. Gut feeling बहुत यूज करते हैं हम लोग. गट फीलिंग है मेरी, मुझे ये गट फीलिंग है. We are thinking all the time with our brain, but then too we are saying gut feeling, because gut is nothing but is our second brain. Gut कुछ stomach upset होता है तो it gives us irritation, it lowers your energy level, mood off हो जाता है. So it is very important to have healthy gut. So अभी हम लोग healthy gut के लिए क्या करते हैं? Fiber, which is a prebiotic, fermented food which act as a probiotic. Yes, हमें you cannot have one food all the time कि हमें वही gut के लिए अच्छा है. No, you should have a variety of foods. At the same time, hydration is also very important. It helps us for the nutrient absorption and elimination of toxins. जैसे मैंने बताया कि अगर मेटाबॉलिज्म में कुछ रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, हमें वो फ्लश आउट करने पड़ते हैं बॉडी से. Who will flush out? Or water will help us to do that. So water is very important. ये तो कोविड में अभी सबको पता चला है कि टर्मरिक रात में सोने से पहले हम लोग टर्मरिक थोड़ा सा हल्दी पानी पी ले या हल्दी दूध पी ले. आंवला, हेयर प्रॉब्लम है, focus on amla. Berries gives us rich in antioxidants, helps for the heart health and brain health. Yes, and red for heart, tomato. These are the some foods you can note down if you want, but that will help us, that you should add. जैसे कि हमने अभी प्लेट के मेथड में भी सीखा कि हमारा आधा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होना चाहिए, आधा हमारा 1/4 हमारा प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 हमारा होल ग्रेन होना चाहिए, एंड सम ऑयल्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, एंड सम स्पाइसेस लाइक पेपर, haldi, and cinnamon that help, cumin seeds, fennel seeds help us to for our digestion, for our immunity boosters. Yes. So these are the very simple and powerful way we can adopt in our lifestyle for the lifelong benefits. इसके लिए कोई सप्लीमेंट्स वगैरह की जरूरत नहीं है. यस, सप्लीमेंट्स मेडिसिन आर इम्पोर्टेंट, लेकिन सप्लीमेंट्स मेडिसिन आप हर ओवर द पीरियड हमें ब्रेक लेना ही पड़ता है उसमें भी. सो वी कैन, हमें डॉक्टर भी कभी सजेस्ट करते हैं तो वी आर सजेस्टिंग फॉर पर्टिकुलर डेज, फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन. बट अगर हम लोग ये अडॉप्ट कर लेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी हैबिट्स इन अवर लाइफ, जैसे कि खाने के थ्रू, वाटर इनटेक एंड एक्टिविटी लेवल, so that small choices will help us for the long life. So अब हमने क्या सीखा कि अगर हम लोग वॉक करते हैं, सुबह का वॉक, the first thing, going and having a sunlight, it refreshes our mood. Yes. अगर हम लोग जिम में जाके ट्रेडमिल पे वॉक करें और वही वॉक अगर कहीं बाहर गार्डन में करें, आप डिफरेंस नोटिस कर सकते हो. नेचुरल वॉक गिव्स अस मूड बूस्टर होता है वो एक तरीके से. हेल्दी प्लेट डेफिनेटली हेल्प अस in all ways. And you have to find out your purpose. Why are you doing it? जैसे कि every food, मैंने बताया, हमने अभी देखा कि every food is sending a message to the body. So tomorrow morning, you have to ask yourself what I would like to eat or what message do I want to send to my body. Correct?
What will you ask to your body? First or second? Will you ask, what do you want to eat? Or will you ask, what message do you want to send it to your body? एक में है वो जो आपका आपके खाने के लिए आपको क्या चाहिए, और दूसरा जो है विच यू आर थिंकिंग फॉर योर हेल्थ स्पैन. करेक्ट. मेरा मन कर रहा है आज मैं बर्गर खा लूं. It will not say, give us or give good signal. It will send a bad signal to my body. Yes, so we have to send a signal to our body for the health span. And as a human being, we are social animal. अगर हम लोग पूरा दिन स्क्रीन के सामने रहते हैं या मोबाइल सोते टाइम पे मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो नोटिस किया होगा सब लोगों ने कि एक तरह से वो स्ट्रेस देता है हमें कि और ज्यादा देखना है और अच्छा देखना है, इसके कंपैरिजन में और देखना रहता है. हमारा उससे कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है वो जो बंदा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी वी आर लाइक कि इससे अच्छा क्या है, इससे कंपैरेटिवली और किसमें नॉलेज दिया हुआ है, दैट एडिंग स्ट्रेस. लेकिन अगर हम लोग वही टाइम हमारे फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, दैट विल गिव अस मोर हैप्पीनेस. करेक्ट, बिकॉज ह्यूमन एज अ ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल. So 5 pillars that we have to focus: food, move, sleep, stress management. That's the reset yourself. And connect with your peers, connect with your family, connect with your friend. So you can plan a Sunday, or you can plan a Sunday morning a garden walk के लिए. You can plan uh, just a meet with your friends or with your family, maybe a half an hour, 1 hour, but that will add on our memories also, and that gives us a lot of happiness. In वो जो स्क्रॉल करने से नहीं आएगा. हजारों रील्स आप देख लोगे पूरे दिन में, लेकिन अगर आप एक एक 5-10 मिनट के लिए आपके दोस्त से या आपके फैमिली मेंबर से मिलते हो, तो वो क्वालिटी इज डिफरेंट. हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप सुबह उठते हो, start your day with a sip of water, a warm water. Yes. अभी जैसे कि हाइड्रेशन 2 to 3 liters, 2 to 3 liters वाटर हमेशा लेना चाहिए, ऐसे हम लोग बोलते हैं. तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि मैं तो चाय लेता हूँ, मैं तो कॉफी लेता हूँ, प्लेन कॉफी लेता हूँ. इज इट ओके? इज इट गोइंग, कैन आई काउंट इट इन थ्री ऑफ दैट कॉल क्वांटिटी ऑफ 3 liter? नहीं. अ प्लेन वाटर विच हेल्प अस फॉर द dehydration. Yes, that will be the add-on water that you're having through coffee or through black tea. But your dehydration, the body can recover only with the plain water or maybe with the lemon water. If you're too dehydrated, you can go for the lemon water. But a sip of regular water will help you to re-energize. Now, how your day should look like with the longevity plate: a healthy breakfast, balanced meal in a lunch, snacks with fruits and oilseeds, nuts and oilseeds, and dinner, a light dinner, colorful light dinner, and that should be early, before 8:30. There should be a gap of 2 to 3 hours before your bedtime. And after this, at the bedtime, proper sleep hygiene, dark color room with no mobile. You should switch off your mobile 1 hour before sleep time. Not switch off, but you should keep it aside. Now, there are some myths
लाइक सप्लीमेंट्स आर इसेंशियल्स. एज आई सेड, सप्लीमेंट्स जब प्रिस्क्राइब होते हैं आपको पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए रहते हैं. लेकिन कोई फूड ऐसे आपको बोला नहीं जाता कि ये फूड ना आप बस 1 महीने के लिए खा लो, 1 महीने के बाद ये नहीं खाओगे तो भी चलेगा, ऐसे कोई नहीं बोलेगा. So you should focus on your healthy life with the healthy food habits. डिटॉक्स लेने से दिक्कत, डिटॉक्स लूंगा तो हो जाएगा सब कुछ. डिटॉक्स आपको लेना है बट नॉट ओनली फॉर अ डे. As I said, the habit should be consistent. It should follow every day. अब इस पे भी होता है कि मैं एक दिन नहीं करूंगी, इट्स ओके. डोंट थिंक अबाउट कि नहीं हुआ एक दिन. जैसे कि मैं हेल्दी लाइफ फॉलो कर रही हूँ लेकिन संडे को मुझे बाहर जाना है. सो डोंट बी ऑन द गिल्ट कि मैं बाहर का खाना खाऊंगी या मैंने बहुत फ्राइड फूड खाया तो अब सारा खत्म हो, अभी अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं कल से फॉलो ही नहीं करूंगी, ऐसे मत करना. इट्स ओके फॉर अ डे. यू कैन स्टार्ट. एज आई सेड कि एवरी डे यू शुड थिंक कि मुझे बॉडी को क्या मैसेज देना है. ठीक है, कल गलत मैसेज चला गया बट आई एंजॉयड विथ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. बट नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अगेन आई कैन थिंक कि मुझे आज क्या मैसेज देना है. नाउ कैन यू आंसर which is the correct option, A or B or C? You can write it in chat box. For the longevity, yes. It's a perfect diet is important, one detox is important, or consistent. Yes, it's a C. It's the correct answer. So you all are aware now कि हमें क्या करना है for our health span. That's great. So our challenge for the next 7 days. हमें पता है कि अभी हमने 3 questions पूछे खुद को कि हमने क्या क्या किया है आज दिन भर में. हमने देखा कि हमें क्या करना है फॉर द हेल्थ स्पैन. तो हमारा अभी 7 डेज का ये चैलेंज रहेगा खुद के साथ. जैसे कि पहले तो हम लोग सोच रहे हैं, पहला तो पॉइंट है कि 5 कलर्स इन योर एवरीडे मील और प्रोटीन इन ईच मील. वॉक हुआ हर दिन, पानी कितना पिया, स्लीप प्रॉपर हुआ क्या, are we avoiding sugary drinks or sugar, add on sugars? And last but not the least, it's very important, is gratitude. Take a moment to be thankful for the each day, to be thankful to the all the people, all the person, even the living, non-living in your life, to add on values in your life. This is very important. When you are giving, when you are aware, when you are writing a gratitude, you can write a gratitude journal. You can see the stress levels, effect on your stress level when you're having the habit of showing a gratitude. रात को सोने से पहले बोलते हैं भगवान का नाम लो, सब भगवान पे डाल दो. उससे क्या होता है, बस वो बोलने से ही हमारा स्ट्रेस एकदम कम हो जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी स्लीप. क्योंकि स्लीप में हमारा बॉडी खुद को रिपेयर करता है. अगर हम लोग वही स्ट्रेस लेके सोते हैं तो दैट वर्क विल नॉट बी इफिशिएंट. तो सोने से पहले एक बार ग्रैटिट्यूड, अच्छा खासा स्माइल, सुबह उठते टाइम पे भी थैंकफुल टू द वन हु हेल्प्स अस टू शो द न्यू डे एंड हेल्प अस टू अचीव द न्यू चैलेंजेस इन आवर लाइफ. सो वो दिन आपका डिफरेंस आपको पता चल जाता है. So as I said, one small change will give us health span. Yes, so you have to fight. First thing है कि हमें वो क्या है करना है, वो हमें चूज करना है. Then you can write it कि what is your goal. Make it realistic. So while setting your goals,
right? हमेशा गोल्स, स्मार्ट गोल्स रखना जो अचीवेबल हो और जो अचीव करने में हमारे पास स्टेप्स ले सकते हैं। तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स एज आई सेड, कि छोटे छोटे चेंजेस एवरी डे। और ये शुरू कब करें, जैसे कि अभी एजिंग एजिंग हुआ, एजिंग करना, एजिंग होता है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब पता है। तो क्वेश्चन आता है कि ये कब, व्हाट विल बी द गुड टाइम फॉर दिस, हम लोग ये कब शुरू करें, 60 में, 70s में, या 20s में? टुडे इज द डे, you should start from today. So eat well, age well, and live well, and stay connected. Every time focus on a one meal at a time. Yes, and don't miss water, 2 to 3 liters of water every day. अभी डिस्कशन हुआ, अभी डेमोन्स्ट्रेशन पे भी ध्यान देते हैं। जैसे कि आईआईटी का ये प्रोग्राम है, which is IIT Swasthya, which is 45 minutes, which will help us to improve our activity level with a personalized guidance. Yes, you will definitely enjoy this program. You can connect with us to start this program. And as you all know, I'm an IIT student. So IIT also provides education in the diets and nutrition field that helps us, and specifically ma'am supports, guidance, and hand holding. The way she is doing is it's very grateful to her. I'm really grateful to her because she's every time she's there, she's supporting to gain the knowledge, to build the confidence. It's a diploma in a diet and nutrition. Yes. Pooja ma'am, are you there? Gauri, I am there. Ruchi, So can you proceed yes, with this? Yeah. yeah. So at currently AHEP, we have a couple of courses. One course is offered in diploma in diet and nutrition. So this is where myself and Gauri, we are also the ex alumni of this platform. So this has been headed. IAHA is Institute of Allied Healthcare Education, founded by Dr. Amita Gulante, and she is conducting this course. तो उनके guidance में 6 months में with the theory and practical, and the exams are conducted. So it's a very beautifully designed course, designed by keeping in the latest society trends. And उसके अलावा Wednesday को we have such beautiful wellness sessions, जहाँ पे फ्री हम लोग काफी लेटेस्ट मीट्स को और ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेली वी आर होस्टिंग 3 exercise बैचेस. First one is starting early in the morning at 7:30 a.m. Then the second one at 9:30 a.m. That these are hosted by Chetna ma'am and Ritesh sir, who are conducting the combination of exercises and the yoga also. And in the evening also, one batch we have for 45 minutes starting from 5 p.m. So any of you like who are interested in adding this habits in your wellness day-to-day routine, so you can approach the IAHA platform under the leadership of Dr. Amita. And I thank you, Gauri, for conducting a very beautiful session of today. And it was full of very interesting knowledge. And Gauri always makes her presentation very colorful. And I would like to ask the audience if what have they benefited from today's session? We'll stop Anybody sharing. can? Yes. तो यू कैन मेंशन इट इन अ चैट बॉक्स कि आज के सेशन से आपको क्या अच्छा लगा, व्हाट इज द थिंग दैट यू आर फोकसिंग मोर। हमें तो फोकस सब पे करना है, लेकिन आप में से
आप लोगों ने कौन से tomorrow what will be the first step that you are going to take? एक मुझे बहुत ही अच्छी बात याद आ रही है, जैसे एक ना वो है, जैसे यू ईट योर फूड एज ए मेडिसिन और एल्स यू विल हैव टू ईट मेडिसिन एज फूड। तो दिस आर द टू चॉइसेस यू हैव इन हैंड, है ना? या तो खाने को टोटली अपन मेडिसिन की तरह खाएं, or else if we do not eat it thoughtfully and we do not um, think about the different aspects that Gauri discussed today, like the longevity और उसका different colors, and just thoughtlessly खाएं, तो we will end up being unhealthy and we'll have to eat a lot of medicines as food. So ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था। सम ऑफ यू प्लीज कम एंड शेयर ना कि क्या अच्छा लगा, व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम टुडेज सेशन। And in the chat link, I've also mentioned the IAHA Swasthya platform. So I'll request the audiences here to visit to this site link, Instagram link, and share your comments there. सो देर आर अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो मैं ही बता देती हूँ मुझे क्या अच्छा लगा। जैसे गौरी ने बताया कि द हाइड्रेशन इज अ फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट, आई लाइक द concept very much. And then she talked about the meats, that the nutrients are essential in day-to-day life. ऐसा नहीं है, the nutrients are advised for a certain fixed period of time. So these are the very good takeaways. So, any help from the nutrition aspect, if it is required for any of the audiences in the ailment uh, recovery and cure, so you can approach at the IAHA nutrition platform. So, with this, I'll thank Gauri and I express my gratitude for coming here. And Gauri, you are muted. Yes, thank you, ma'am. Thanks a lot. Yes, yes. Even So, I enjoyed. And yes, I'm yes. really thankful to IIT as well as Amita ma'am for her support. And she's always there for the guidance. And anytime, if you ask her कि मैम आप ये टॉपिक वापस मुझे एक बार वापस बताओगे, वी कैन डिस्कस कि मैम हमें बताती है कि और अगर रिवाइज करना दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज हैंड होल्डिंग सब जो होता है हमारा विद आईआईटी, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। सो Yes. So there is also a meditation class designed by Dr. Amita, and it is nowadays regularly conducted on every Saturdays, wherein the stress factor and the emotional uh, breakdown and the imprints are also dealt through meditation help. So thank you to all the audiences, and I will conclude today's session. And we are very grateful that you all attended and with a lot of focus, and you remained with us from 9 to 10. And myself and Gauri, we express our heartfelt gratitude over here. Thank thank you, you, thank thanks a you. lot. Okay, okay, I'll bid good night to everyone. Yes, good night. Yeah, good night, bye. Thank you, Praveen. Bye.
Bye.